Hello, dear friends and students. Welcome to Wow Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. In today's series, we will cover class 6 pol science or civics, all important questions. So let us start. Students who will go through this video, because when they will look for and search for the MCQs related to their lesson, so this video can help them as well. So question number 1 है, Ladakh is situated in, it is situated in eastern part of Jammu and Kashmir. As you can see, this is the map of India, and this, if you'll divide this map into 4 direction, this right hand side will be eastern direction and the left hand side will be the western direction. So the eastern part of our country, and that too also northeast part of our country, will be Jammu and Kashmir. Which shawls are woven in Kashmir? And very obvious and very easy question, that is Pashmina shawls. People of Ladakh own means here I am talking about animals. They own goats, cows and dijoes. Dijoes is also known as yak cows, जो वहाँ पे मिल्क भी देते हैं और उनके मिल्क का वो बटर और चीज़ बना के they use it for their daily food. Buddhism reached Tibet from which country? And the answer is Tibet. As you can see, Ladakh is very close. It has the boundary, long boundary with Tibet country. Earlier it was Tibet an independent country. Now it has been annexed by the China. तो तिब्बत का जो custom था, जो tradition था, तो obviously उसका effect लद्दाख के ऊपर पड़ा. That's why जो बुद्धिज्म है वो लद्दाख के अंदर वाया तिब्बत आया. Next question ही, Ladakh is also called Little Tibet. इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन लद्दाख अबाउट 400 ईयर्स अगो. उससे पहले लद्दाख पूरा एक बुद्धिस्ट स्टेट था, बुद्धिस्ट रीजन था. बट कश्मीर और जम्मू का जो रीजन है उसमें इस्लाम कम्युनिटी के स्प्रेड के कारण इस्लाम का कुछ जो है पोर्शन वो लद्दाखी लोगों के अंदर भी चला गया और लद्दाख के कुछ जो कम्युनिटी है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं. लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. तो लद्दाख के अंदर आपको दो कम्युनिटी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा जो हैं वहाँ पे पॉपुलेशन उनकी वो है, मोस्ट ऑफ देम आर बुद्धिस्ट, और कुछ जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की भी है लद्दाख के अंदर. नेक्स्ट है, केरला इज सिचुएटेड ऑन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. एज यू कैन सी इन दिस मैप, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और जो नीचे का पोर्शन है इंडिया का दैट इज़ नोन एज द साउथ पोर्शन ऑफ इंडिया, और इस साइड पे जो है वेस्ट के साइड में केरला सिचुएटेड है. केरला इज फेमस फॉर स्पाइसेस. हु आर द फर्स्ट ट्रेडर्स टू कम टू केरला? केरला में आने वाले सबसे पहले ट्रेडर्स थे ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स. द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू कम हियर नियरली 2000 years ago, and he was the one who had brought Christianity in Kerala. Who wrote a travelogue about the lives of Muslim of Kerala? Ibn Battuta, who himself was one traveler who had visited India very long time, so he had written about the lives of Muslim in Kerala. Ibn Battuta, he had come from Morocco, South Africa to India. He himself was a Muslim. Who discovered sea route to India? The credit goes to Portuguese traveler Vasco da Gama. Which religions are practiced in Kerala? Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. So as we can see, Kerala can be called as a mini world, because lots of these religions are practiced over there. Chinese fishing nets are called China wala. In Kerala, frying utensils are called China chatti. जिसके ऊपर आप चाटते हैं खा के, तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं. चीन का मतलब है ये जो दोनों नाम है ये चाइना से इनको मिले हुए हैं. तो इसी प्रकार से जो चाइनीज़ फिशिंग नेट्स है उसको चीना वाला बोला जाता है, और जो चाइनीज़ फ्राइंग यूटेंसिल्स हैं उनको चीना चाटी बोला जाता है. जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस एट अमृतसर. डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू. Who gave the phrase unity in diversity? Again, this phrase was given by Jawaharlal Nehru. Who wrote our national anthem Jana Gana Mana?
It was written by Gurudev Rabindranath Tagore. Lesson number 2, that is diversity and discrimination. Here you will come to know about various, some of the important definition. First is, what is stereotype? When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम बिना किसी बेस के अपने प्री जो ऑक्यूपाइड हमारी जो थिंकिंग होते हैं उसके आधार पे लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ों में फिक्स कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर थिंकिंग में फिक्स कर देते हैं, तो देन वी आर क्रिएटिंग द स्टीरियोटाइप. व्हाट इज प्रीजुडाइज? प्रीजुडाइज मीन्स टू जज पीपल नेगेटिवली और सी देम एज inferior. Who is the father of Indian Constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar belonged to which community? He belonged to Mahar community. Mahar community is one of untouchable community of Maharashtra. Equality of status and opportunity is mentioned in. It was mentioned in the first page of the Constitution. Lesson number 3, what is government? What are the 3 levels of government? They are local level, state level and national level. Who gave right and power to government in democracy? Government की जो पूरी power होती है वो उनकी कौन है? वो obviously जनता है. We the people are the power. Who has power to make decisions in monarchy? Monarchy is also one form of government where all the power is vested only in the few hands. Either he is king or she is a queen. So all the power it vests in kings or queens. People participate through their representatives in which form of government? That is known as democracy. Democracy में जो होते हैं हम सब के सब जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए what we do, हम अपने representatives को जो है चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे इलेक्शन लड़ते हैं और हम लोगों की आवाज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर पार्लियामेंट में पुटअप करते हैं. What is suffrage movement? Women's movement in USA and all over Europe to fight for participation in government making and in voting. आपको पता है India is one of the privileged country where the women got the chance to vote even in the first vote, that even in the first election. बल्कि बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशन है जैसे यूरोप और अमेरिका है वहाँ पे बहुत लंबी जो इन लोगों ने लड़ी है वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बाद इन लोगों को वहाँ पे वोटिंग का मौका मिला. तो उसी मूवमेंट को सफरेज मूवमेंट बोला गया. व्हाट इज सफरेज? सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट. व्हेन डिड अमेरिकन वुमेन गेट राइट टू वोट? इट वॉज इन 1920, जबकि अमेरिका बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो चुका था, बट बहुत लंबी लड़ाइयों के बाद जो है तब जाके उस कंट्री की जितनी भी फीमेल्स थी उनको राइट टू वोट का अधिकार दिया. व्हेन डिड द वुमेन इन यूके गॉट राइट टू वोट? दे गॉट इट इन 1928. अमेरिका ने 1920 में दिया तो उसके 8 साल बाद यूनाइटेड किंगडम की महिलाओं को भी वोटिंग का राइट मिला. हु वर अलाउड टू वोट इन ब्रिटिश इंडिया? जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल रूल था, उस समय इंडिया के अंदर कौन कौन वोटिंग के लिए अलाउड थे? तो उस समय केवल मेन विथ प्रॉपर्टी एंड एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग थे और जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी, ओनली वो वोट कर सकते थे. इनफैक्ट वुमेन चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू वोट दैट टाइम. We are talking about colonial period in India. Who were not allowed to vote in British India? Women, poor और uneducated. जो 3 कैटेगरी थी, इन लोगों को वोटिंग अलाउड नहीं था. Next question is, what is known as universal adult franchise? It is that when we give right to vote to all the adults, and the age of the adult can vary from country to country. As far in our country the voting age is 18 years, but in many of the countries they have given it for the 16 years. In some countries they have given voting rights at 21 year of age, and in some countries they have been given the right to vote in 23 years of age. So it may vary from country to country. तो जब आपके कंट्री के सारे जो एडल्ट हैं, जैसे ही वो 18 ईयर पार करते हैं, 18 ईयर को अटेन करते हैं, तो वैसे ही उनको ऑटोमेटिकली राइट टू वोट मिल जाता है. हु पब्लिश जर्नल यंग इंडिया? यंग इंडिया जो जर्नल था, जो मैगजीन थी, इट वॉज बीइंग पब्लिश बाय महात्मा गांधी.
Who said I cannot possible bear the idea that a man who has got wealth should get the vote, but a man who has got a character but not wealth should have no vote. तो ये जो वाक्य थे ये किनके कहे हुए थे? ये महात्मा गांधी द्वारा कहे गए थे जब उनको पता चला कि इंडिया के अंदर जो वोटिंग राइट है वो बहुत ही अनसिमिलर है, मतलब बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है. Lesson number 4, key elements of democratic government. Question number 1 is, what is apartheid? Separation and discrimination on the basis of race. And this practice was being carried in South Africa country. जब आप कलर के बेस पे या फिर रेस के बेस पे लोगों से भेदभाव करते हैं तो उस टर्म को हम अपार्थीड बोलते हैं. Where did Hector Peterson lived? साउथ वेस्ट टाउनशिप ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका. तो ये जो लेसन है साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंट मूवमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए इस लेसन के जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द साउथ अफ्रीका. तो हेक्टर पीटरसन वाज वेरी फेमस फॉर देयर ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड. तो वहाँ के जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है. तो वो साउथ वेस्ट टाउनशिप था जहाँ पर केवल ब्लैक पीपल को ही रहना अलाउड था. What is the native language of South Africa? That is Zulu. When did Hector killed by police bullet? He was killed on 16 June 1976. Nelson Mandela belonged to which party? He belonged to African National Congress. Nelson Mandela, the way Mahatma Gandhi is to the freedom movement of India, the similar position has been given to Nelson Mandela for the African National Movement or the freedom movement. When did South Africa become democratic nation? It was in 1994. Kaveri water dispute is between two states, and those two states are Tamil Nadu and Karnataka. Krishna Nagar Dam, it is situated in which state? It is in Karnataka. Mettur Dam, it is in which state? It is in Tamil Nadu. Lesson number 5, Panchayati Raj. Question number 1 is, what is Gram Sabha? It is a meeting of all adults above 18 years who live in a area of a पंचायत. सपोज करो हम किसी गांव को इमेजिन करते हैं तो उस गांव में रहने वाले सभी लोगों को हम ग्राम सभा का मेंबर नहीं बना सकते. ओनली 18 साल से ऊपर के जितने भी उस गांव में रहने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं, बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट होता है. Who are members of Gram Sabha? Anyone who is 18 years and above of age and has right to vote is the member of Gram Sabha or Gram Panchayat. Who is Panchayat President? जो उस गांव का सरपंच होता है, इलेक्टेड या प्रधान भी बोलते हैं उसको, वो जो होता है पंचायत का प्रेसिडेंट होता है. एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. अगर गांव छोटा है या चाहे बड़ा हो फिर भी उस गांव को कुछ वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ईच वार्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वार्ड मेंबर. तो हर वार्ड में से एक वार्ड मेंबर को भी इलेक्ट करते हैं और पूरे गांव में से एक सरपंच को या फिर प्रधान को इलेक्ट करते हैं. तो सिमिलरली हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर भी इलेक्ट होता है. तो एक गांव का एक प्रधान हो सकता है बट बहुत सारे वार्ड मेंबर हो सकते हैं. द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years. द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ a government employee and keeps record of पंचायत proceeding. तो पंचायत अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है, ग्राम प्रधान गवर्नमेंट से मिलने वाले फाइनेंशियल एड को अच्छे से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, गांव के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर, इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड रखने का काम होता है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया जाता है और उसको पंचायत सेक्रेटरी बोला जाता है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BPL? द फुल फॉर्म ऑफ BPL इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन. निर्मल ग्राम पुरस्कार इज़ रिलेटेड टू, एक प्रकार का जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड किसको दिया जाता है? फॉर द एक्सीलेंट वर्क इन द पंचायत. सपोज करो किसी ने अपने गांव के एरिया में बहुत अच्छा काम किया है 5 साल के अंदर, तो ये सारे इंडिया के जितने भी गिने चुने जो लोग होते हैं जो गाँव में पंचायतों में अच्छा काम करके दिखाते हैं, उन ग्राम प्रधानों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार जो अवार्ड है उसको स्टार्ट किया गया है. व्हाट आर द 3 levels ऑफ पंचायत? 3 levels ऑफ पंचायत आर, विलेज लेवल होता है जिसमें ग्राम सभा होती है और उसका हेड प्रधान होता है और बहुत सारे विलेजेस से मिलके एक ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक का जो हेड होता है उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोला जाता है. और जब बहुत सारे ब्लॉक आपस में मिल जाते हैं तो तब बनता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो दीज आर द 3 levels ऑफ पंचायत.
Lesson number 6, rural administration. What is SHO? SHO is station house officer. ये पुलिस स्टेशन में होते हैं. वट आर द वेरियस नेम्स ऑफ पटवारी. गांव में आपको पता है जितना भी गांव के ज़मीनों का लेखा जोखा होता है, रिकॉर्ड वगैरह रखने का काम पटवारी का होता है. तो पटवारी को अलग अलग ज़िले में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारते हैं. लेखपाल बोलते हैं उसको, कानूनगो भी बोला जाता है, कहीं पर उसको विलेज ऑफिसर बोला जाता है, कहीं पर उसको कर्मचारी भी बोला जाता है. वट इज़ द जॉब ऑफ पटवारी. क्या काम होता है उनका? मेजरिंग लैंड्स एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड. गांव के अंदर किसकी ज़मीन किसके पास है, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसने अपनी ज़मीन किसको बेच दी है, तो इन सब चीज़ों का ट्रांसफ़र कराना और लैंड का रिकॉर्ड रखना, ये काम पटवारी का होता है. व्हाट आर द सब डिविजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट के जो फर्दर डिवीजन होते हैं वो किस चीज़ में होते हैं? डिस्ट्रिक्ट फर्दर जो है तहसील में बट्टी होती है, या उनको तालुका भी बोला जाता है. हु इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है. हु इज़ द हेड ऑफ द तहसील. ओबियसली जो तहसील का हेड है उसको भी तहसीलदार बोला जाता है. वेयर कैन वी गेट द कास्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम. कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वी नीड टू गो टू द तहसीलदार्स ऑफिस. व्हेन डिड द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास्ड. 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ. इसके अकॉर्डिंग बेटों के जैसे ही बेटियों को भी और हस्बैंड के जैसे ही उनकी वाइफ को भी प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा. लेसन 6, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. Next lesson is lesson 6, urban administration. Before in the previous lesson we talked about the rural administration. Now let us talk about the urban administration. Question number 1 is municipal corporation works in large towns. Municipal council works in small towns. जो बड़े शहर होते हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, तो इन यहाँ पे जो MCDs होते हैं उनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं. और सिमिलरली जैसे छोटे शहर हैं, अगर हम अलीगढ़ की बात करेंगे या फिर और भी छोटे शहरों की बात करेंगे, तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सिटी का देखभाल करने के लिए उसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है. द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू. इससे पहले हमने पढ़ा था जो विलेज होता है विलेज वार्ड में डिवाइडेड होता है, तो सिमिलरली जो सिटी है सिटी भी वार्ड्स में डिवाइडेड होती है. ईच वार्ड इलेक्ट इट्स वार्ड काउंसलर फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. इनका टर्म भी विलेज पंचायत के जैसे 5 years का ही होता है. The city of Surat has a plague scare. In which year? It was in 1994. Now next lesson is lesson 8, rural livelihood. What is paddy? Paddy धान को बोलते हैं. Paddy is main crop that is grown in irrigated lands. बिल्कुल जो क्यारियाँ होती है, क्यारियों को पानियों में डुबा दिया जाता है. उसके बाद जो पैडी के प्लांट्स होते हैं उनको ट्रांसप्लांट करके रुपाई लगाई जाती है. उस फसल को पैडी बोला जाता है. व्हाट इज सिजामी फेमस फॉर? इट इज़ अ विलेज इन नागालैंड एंड पीपल ऑफ Chakseng community do terrace cultivation over here. So that's it for class 6 civics or the pol science book you can say. And please do like and subscribe the channel Wow Education for further more educational videos for all your competitive examination. Thank you so much.